Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Nazia Anwar. Welcome to the class of cloud computing. In this lecture, uh, we will study some fundamental concepts related to cloud models. And in this lecture, I am going to discuss organizational roles and their main interactions. In our previous lecture, we discussed about what is cloud, what is actually an IT resource, uh, what is on-premise, and what is scaling. Then we discussed what is virtual scaling and what is horizontal scaling, and then we discussed what actually is a cloud service. So now I will discuss the remaining relevant basic terms that represent the fundamental concepts and aspects pertaining to the notion of a cloud and its most primitive artifacts. As you know, organizations and humans can assume different types of predefined roles depending on how they relate to and how they interact with the cloud and its hosted IT resources. तो जितने भी अपकमिंग रोल्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं क्लाउड में और जो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी आउट कर रहे होते हैं क्लाउड बेस्ड एक्टिविटीज़ में, तो वो हम जो है वो अभी हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनको हम डिस्कस करते हैं, उनकी मेन इंटरेक्शंस देखते हैं। तो पहला है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। एक्चुअली द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स क्लाउड बेस्ड IT resources is the cloud provider or also called cloud service provider CSP. When assuming the role of a cloud provider, an organization is responsible for making cloud services available to a cloud consumers as per agreed upon SLA guarantees. बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको क्लाउड बेस्ड IT रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर या CSP कहते हैं जनरल टर्म्स में। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का मेन रोल क्या होता है? इसने आपको क्लाउड सर्विसेज जो है क्लाउड कंज्यूमर्स को, जो क्लाउड यूजर्स या क्लाउड कंज्यूमर्स हैं, उनको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। किसके मुताबिक? जो कि पहले से तयशुदा सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होते हैं, अगर उनके मुताबिक जो है वो क्लाउड सर्विसेज क्लाउड कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करनी है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने। The cloud provider is further tasked with any required management and administrative duties to ensure the ongoing operation of the overall cloud infrastructure. Cloud service providers CSPs बेसिकली वो कंपनीज हैं जो आपको नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, बिजनेस एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती हैं। कहाँ पर? क्लाउड में। मीन्स cloud service providers, that is CSP, are companies that offer network services, infrastructure or applications in the cloud, and the cloud services are hosted in a data center that can be accessed by companies or by individuals using network connectivity. यानी CSP वो कंपनीज हैं जो कि आपको नेटवर्क सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशंस जो हैं वो ये सब चीज़ें क्लाउड में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और क्लाउड सर्विसेज कहाँ पर होस्टेड होती हैं? डाटा सेंटर में, जिसको कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल जो है वो अपने इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क कनेक्टिविटी के थ्रू क्लाउड से कनेक्ट होके उन सर्विसेज को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या है? बहुत बड़ा बेनिफिट दो हैं, एक एफिशिएंसी और दूसरा इकोनॉमी ऑफ स्केल। ये दो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है ऑफ यूजिंग अ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। कि अगर को आप उसके बजाय आप कोई इंडिविजुअल हैं या आपने कोई कंपनी कोई बिल्ड की है, जो अपना कोई आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, तो आपको जो है वो इंटरनल सर्विसेज और एप्लीकेशंस को सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको जो है वो सर्विसेज परचेज करनी पड़ेंगी। तो मतलब आपको रिसोर्सेज परचेज करने पड़ेंगे, अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। तो क्लाउड में ये फ़ायदा है that rather than buying your own resources, rather than building your own infrastructure, um,
The benefit of CSP is that the services can be purchased from the cloud service provider, which provide the services to many customers from a shared infrastructure. Cloud service provider का एक shared infrastructure होगा जो कि बहुत सारे customers में, users में at the same time share हो रहा होगा. तो आप customers जो हैं उन services को acquire कर सकते हैं उस shared infrastructure से, cloud service provider से. Means, I repeat, rather than individuals and companies building their own infrastructure to support internal services and applications, the services can be purchased from the CSP, which provide the services to many customers from a shared infrastructure. Cloud providers normally own the IT resources that are made available for lease by cloud consumers. यानी क्लाउड प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो नॉर्मली उनकी आईटी रिसोर्सेज को वो ओन कर रहे होते हैं और वो हमें क्लाउड कंज्यूमर्स को कैसे अवेलेबल होती हैं, लीज पर आप ले सकते हैं. हाउएवर देयर आर सम क्लाउड प्रोवाइडर्स जो कि आईटी रिसोर्सेज को रीसेल भी कर रहे होते हैं, यानी जो उन्होंने दूसरे क्लाउड प्रोवाइडर से लीज पर ली होती है उनको वो आगे रीसेल भी करते हैं. ऐसे बहुत सारे वेल नोन मेजर पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे वेल नोन पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन से हैं. अलीबाबा क्लाउड है, अमेजॉन वेब सर्विसेज, AWS, गूगल क्लाउड, IBM क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्लाउड्स हैं और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं पूरी दुनिया में जो कि हमें क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. The cloud provider is further tasked with any required management and administrative duties to ensure the ongoing operation of the overall cloud infrastructure. Examples of CSPs जो कि अभी मैंने आपको बताई हैं, कुछ Adobe, VMware, Rackspace, Red Hat और ये बहुत सारी और एग्जाम्पल्स हैं मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स की. तो हम ये दोबारा देखते हैं कि क्लाउड प्रोवाइडर हम क्यों यूज़ करें, वाई यूज़ अ क्लाउड प्रोवाइडर. देखिए, क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो बहुत सारे वेज में यूज़ करना आपके लिए हेल्पफुल है. आपको क्लाउड प्रोवाइडर्स कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिनको अदरवाइज आपको जो है वो आपको अपने तौर पर खुद उनको जो आप ओन कर रही हैं उसके बजाय आप क्लाउड से सर्विसेज जो है वो एक्वायर कर सकती हैं. जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप क्लाउड प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो उसका शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप यूज़ कर सकते हैं. तो जो कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो किसी भी कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट की एक फाउंडेशन है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नेटवर्क्स भी आ जाते हैं. इट कुड इंक्लूड स्टोरेज, इट कुड इंक्लूड सर्वर्स एंड इट कुड इंक्लूड वर्चुअलाइजेशन, यानी ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं. इसके अलावा जो है वो आप प्लेटफॉर्म जो है वो आप क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं. यानी प्लेटफॉर्म मतलब जो टूल्स आपको चाहिए अपनी एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए या डिप्लॉय करने के लिए. And these platforms could include operating systems, these platforms could include middleware, these platforms could include runtime environments. इसके अलावा आप क्लाउड से जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर क्या होता है, रेडी टू यूज़ एप्लीकेशंस होती हैं. ये जो है वो सॉफ्टवेयर कस्टम भी हो सकता है और या स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस जो या इंडिपेंडेंट सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं वो भी हो सकती हैं. So now let's see what is a cloud consumer. A cloud consumer is an organization or a human that has a formal contract or arrangement with a cloud provider to use IT resources made available by the cloud provider. Cloud consumer क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल जो कि क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विसेज, जो क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विसेज को यूज़ कर रहा है. जो क्लाउड प्रोवाइडर आपको आईटी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है उनको आप यूज़ कर रहे हैं. स्पेसिफिकली द क्लाउड कंज्यूमर यूजेस अ क्लाउड सर्विस कंज्यूमर टू एक्सेस अ क्लाउड सर्विस. बेसिकली क्लाउड कंज्यूमर जो है ये प्रिंसिपल स्टेक होल्डर होता है किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में. Cloud consumer represents a person or an organization that maintains a relationship with the cloud provider and uses the services from the cloud provider. यानी क्लाउड कंज्यूमर बेसिकली क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो कि क्लाउड प्रोवाइडर की सर्विसेज को यूज़ कर रहा होता है उसको क्लाउड कंज्यूमर कहते हैं.
क्लाउड कंज्यूमर जो है इसको बिल किया जाता है, जो इसने सर्विसेज जो है इसको प्रोवाइड की जाती हैं उसके मुताबिक बिल किया जाता है, और उसके मुताबिक ये जो है इसने पेमेंट्स करनी होती हैं। क्लाउड कंज्यूमर्स जो हैं उनको कुछ स्पेसिफिक SLAs जो हैं यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड रिक्वायर होते हैं, जिनमें कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिनको क्लाउड प्रोवाइडर फील करता है। यानी SLAs में बेसिकली वो टर्म्स होती हैं रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस, सिक्योरिटी, रेमेडीज फॉर परफॉर्मेंस फेलियर्स, यानी वो टर्म्स एंड कंडीशंस SLAs के अंदर होती हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स के अंदर, जो कि किससे रेलेवेंट होती हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस से रेलेवेंट होती हैं, सिक्योरिटी से, या कोई परफॉर्मेंस फेलियर अगर हो जाए तो उसकी रेमेडीज से रेलेवेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो SLAs में होती हैं। तो SLAs को फुलफिल करना किसका काम होता है? क्लाउड प्रोवाइडर का, यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स का। Now let's see what is the relation between a cloud consumer and a cloud provider. दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि cloud consumer क्या है. Cloud consumer is a person or organization that maintains a relationship with the cloud provider and that uses services from the cloud service provider. Basically cloud consumer जो है वो cloud provider की services को use कर रहा होता है. एंड क्लाउड प्रोवाइडर कौन है? पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सर्विस अवेलेबल टू द सर्विस कंज्यूमर्स। यानी क्लाउड प्रोवाइडर कौन है? जो जिम्मेदार होता है कि इसने सर्विसेज जो हैं वो सर्विस कंज्यूमर को या क्लाउड कंज्यूमर को प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे अब इस फिगर में देखें कि क्लाउड ये ऑर्गेनाइजेशन ए है जो कि क्लाउड कंज्यूमर है, ये it interacts with a cloud service from a cloud provider that owns cloud A. क्लाउड प्रोवाइडर यानी CSP है, लेट्स अज्यूम कि Amazon है और वो एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, उसका क्लाउड A है, ठीक है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो क्लाउड कंज्यूमर विद इन ऑर्गेनाइजेशन A, the cloud service consumer is being used to access the cloud service. यानी जो ऑर्गेनाइजेशन ए के अंदर जो क्लाउड कंज्यूमर है वो जो है वो इस लेट्स अज्यूम ये क्लाउड ए जो है ये अमेज़ॉन है, तो इसकी सर्विसेज को वो एक्सेस कर रहा होगा। यानी वो रिसोर्सेज जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी से इस क्लाउड से कनेक्ट होके इसकी सर्विसेज को एक्वायर कर रहा होगा, जो कि क्लाउड प्रोवाइडर क्लाउड कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहा है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की या क्लाउड प्रोवाइडर की बेसिकली क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? इसने क्लाउड प्रोवाइडर ने जो है वो सर्विसेज को डिप्लॉय करना होता है, सर्विसेज को मैनेज करना होता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होती है। यानी ये मेन फीचर्स काम है जो कि और प्राइवेसी भी, यानी सिक्योरिटी, प्राइवेसी, सर्विस प्रोक्यूरमेंट मीन्स सर्विस डिप्लॉयमेंट एंड सर्विस मैनेजमेंट, ये सारी जो है दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर्स। सर्विस डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ऑल द एक्टिविटीज़ एंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन नीडेड टू मेक अ क्लाउड सर्विस अवेलेबल। यानी क्लाउड किसी भी क्लाउड सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म करना, उसका मतलब है आपने सर्विसेज को डिप्लॉय किया है। और उन सर्विसेज को मैनेज करना, इसमें जितनी भी सर्विस रिलेटेड फंक्शंस आ जाती हैं जो कि उन सर्विसेज की मैनेजमेंट या ऑपरेशन से रेलेवेंट जो हैं वो नेसेसरी होते हैं, जो भी आपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी में जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि सिक्योरिटी का मतलब ये है कि किसी अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना या अपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना, और उसके अलावा अनऑथराइज्ड यूज़ या डिस्क्लोजर या डिसरप्शन या मॉडिफिकेशन या डिस्ट्रक्शन, यानी इन सब चीज़ों से अपने सिस्टम को, अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को या अपनी डाटा को प्रोटेक्ट करना, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी जो है वो सर्विस क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसमें जो है जब हम ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो हमने
एक CIA ट्रायड पढ़ा था, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, यानी ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बेसिकली क्लाउड प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि आपने अपने डाटा को इम्प्रॉपर मॉडिफिकेशन से बचाना है, इम्प्रॉपर डिस्ट्रक्शन से बचाना है, यानी ये मेक श्योर करना है कि आपका डाटा जो है वो ऑथेंटिकेटेड हो। और कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि आपने अनऑथराइज रिस्ट्रिक्शंस जो हैं उससे अपने डाटा को बचाना है, मतलब अपने पर्सनल प्राइवेसी का जो है वो डाटा की पर्सनल प्राइवेसी का ख्याल रखना है। और अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि ये इंश्योर करना है, ensuring timely and reliable access and use of information। और प्राइवेसी जो है, प्राइवेसी मीन्स कि आपने ये मेक श्योर करना है, यानी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने मेक श्योर करना है कि आपका जो है वो उस डाटा का कलेक्शन, प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशन या यूज़ या उसकी जो यानी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो जिसको पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन जो है उसकी आपने जो है वो सीक्रेसी या प्राइवेसी का ख्याल रखना है। Now let's see who is a cloud service owner. Basically, a cloud service owner is a person or organization that legally owns a cloud service। जो उस क्लाउड सर्विस को लीगली ओन कर रहा होता है उसको हम जो है वो क्लाउड सर्विस ओनर कहते हैं। द क्लाउड सर्विस ओनर कैन बी द क्लाउड कंज्यूमर और द क्लाउड प्रोवाइडर दैट ओन्स द क्लाउड विद इन विच द क्लाउड सर्विस रिसाइड्स। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्लाउड सर्विस ओनर जो है वो क्लाउड कंज्यूमर भी हो सकता है और क्लाउड प्रोवाइडर भी हो सकता है। क्लाउड प्रोवाइडर वो होता है जो कि जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, क्लाउड कंज्यूमर सर्विसेज को यूज़ कर रहा होता है। और जो सर्विसेज का ओनर होता है वो क्लाउड प्रोवाइडर और कंज्यूमर दोनों हो सकते हैं। कैसे? मीन्स कि ये कंपल्सरी नहीं है कि हर क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो हमेशा उस क्लाउड का सर्विस ओनर भी हो। ये बिल्कुल जो है ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, यानी जो क्लाउड प्रोवाइडर है वो सर्विस ओनर भी हो सकता है और हो सकता है कि क्लाउड प्रोवाइडर सर्विस ओनर ना हो। कैसे? जैसे कि अमेजॉन है वो एक क्लाउड प्रोवाइडर है, अमेजॉन वेब सर्विसेज एक क्लाउड प्रोवाइडर है। डिप्लॉय डॉकर जो है उसकी एक सर्विस है जो कि अमेजॉन प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये सर्विस अमेजॉन ने डेवलप नहीं की, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डिप्लॉय डॉकर जो है वो एक डॉकर जो है वो एक क्लाउड सर्विस ओनर है और अमेजॉन क्लाउड प्रोवाइडर है। उस सर्विस का ओनर जो है वो डॉकर है और अमेजॉन क्योंकि उसका क्लाउड है तो वो क्लाउड प्रोवाइडर है, जो कि मतलब कंक्लूजन ये कि इस समटाइम्स सेम बोथ मींस क्लाउड प्रोवाइडर एंड क्लाउड सर्विस ओनर समटाइम्स ये सेम होते हैं, समटाइम्स बोथ क्लाउड प्रोवाइडर्स एंड क्लाउड सर्विस ओनर्स आर डिफरेंट। So, a cloud consumer can be a cloud service owner when it deploys its own service in a cloud। यानी क्लाउड कंज्यूमर जो है वो क्लाउड सर्विस ओनर कब होता है? अगर वो क्लाउड कंज्यूमर अपनी सर्विस जो है क्लाउड के अंदर डिप्लॉय कर रहा हो, तो वो उस केस में वो उस सर्विस का ओनर होगा। अब इस केस में क्या है, उस क्लाउड पर ये जो क्लाउड एक्स है उसका क्लाउड कंज्यूमर जो है वो सर्विस का ओनर जो है वो क्लाउड कंज्यूमर है। लेकिन सेकंड केस ये है कि जो सर्विस का ओनर जो है वो क्लाउड प्रोवाइडर खुद है, क्लाउड कंज्यूमर नहीं है। Cloud provider becomes a cloud service owner if it deploys its own cloud service, typically for other cloud consumers to use। तो हमने दोनों केसेस देखे, either the cloud consumer of cloud X or the cloud provider of cloud X could own cloud service A। यानी क्लाउड, ये जो क्लाउड है इसके अंदर जो सर्विस ए प्रोवाइड की जा रही है, क्लाउड कंज्यूमर भी उसका ओनर हो सकता है अगर उसने डिप्लॉय की हो, और अगर क्लाउड प्रोवाइडर ने खुद वो डिप्लॉय की है तो वो उस सर्विस का ओनर होगा। मींस क्लाउड सर्विस ओनर
is the entity that acquires cloud services such as platform or infrastructure as a service from the cloud service provider. और उसके बाद क्लाउड सर्विस ओनर क्या करता है, इट देन एड्स कंपोनेंट्स और configuration to deliver the required functionality to the cloud consumer. In a cloud consumer that owns a cloud service hosted by a third-party cloud does not necessarily need to be the user or consumer of the cloud service. Several cloud consumer organizations develop and deploy cloud services in clouds owned by other parties for the purpose of making the cloud services available to the general public. The reason a cloud service owner is not a cloud resource owner is because the cloud service owner role may apply to cloud services. And that's all for this lecture. We will continue our discussion in our next lecture.